operations on real number means, beta, the operations like plus, minus, multiply, divide, these are known as operations. Okay, so we have already learned many operations on real number, like you can add 3 and 5, right? 3 and 5 are real numbers, and this one is an operation between them. This operation is saying कि we have to add this 3 and 5. Okay, so we have almost completed all the operations of real number on the rational part. रैशनल पार्ट का जितना भी ऑपरेशंस है वो सब हम लोग पहले से किए हुए हैं, बट ऑपरेशंस बिटवीन इरेशनल नंबर्स हैज नॉट बीन डन. अभी इरेशनल नंबर्स के बीच का ऑपरेशंस हम लोग कवर नहीं किए हैं. फॉर एग्जांपल, इफ समवन आस्क्स कि √3 प्लस 2√3, √3 plus 2√3, this one is irrational and this one is also an irrational. So how to add or multiply or divide this types of numbers? Okay, so today we will cover it. So beta, any irrational number, you are going to deal with the operations on irrational number, right? So before going to deal with this, we first take any irrational number like a variable, just like you multiply, divide in an algebra. जैसे तुम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है? जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि a प्लस 2a, a plus 2a, so here a is variable, right? And these are the real parts and constants, 2 and 1. Here you can consider 1 na. So you can easily add it and you will write it like 3a. Okay, so similarly, if you have any root like number, okay, any root like number there, you will take that number as a variable. This will make your simplification very easy. जब कोई रूट लाइक नंबर होगा वहां तो उस रूट वाले को क्या ले लेंगे? वेरिएबल की तरह सोचोगे. दैट इज लाइक अ वेरिएबल. एंड वी नो कि ओनली इफ देयर आर वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल 2a plus 3b plus 4a, you know ना कि this and this terms can be added, but this one will not be added to this because this is unlike ना. ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? अनलाइक है. अलजेब्रा का जोड़ क्लियर है ना सबका? तो ये क्या आएगा? You will add this to 6a and this one will be there as it is, right? So similarly, taking the example of this one, what I told कि take any root वाला number like irrational number as a variable. For example, you have to add √2 plus 2√2, √2 plus 2√2. So here this one will be work like a variable. ये रूट वाला नंबर कैसे वर्क करेगा? वेरिएबल की तरह करेगा ना. जस्ट लाइक a is here, जैसे यहाँ a वर्क कर रहा था वैसे ही ये रूट वाला नंबर वर्क करेगा. तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हो. 1 plus 2 क्या हो जाएगा? 1 plus 2 3, और यहाँ पे a है तो ये √2 तो रहेगा ना. 3√2. क्लियर है ना? अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं. देखो, इफ देयर इज
2√2 plus 3√5 plus 4√2. So here root वाले number works like a variable. So √2, √5, √2, we will take it as a variables. Okay. So we know that if the variables of the terms are same, they are like. Here only this and this terms are like, na beta. This term and this term is like. This one is not. So only this term will be add together. 6√2. And this one we will put as it is. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है. Similarly, subtraction will be done. Subtraction भी ऐसे ही करेंगे. For example, if we have 3√5 minus √5, it will be 3, and first of all these two are like terms. ये तो देखने होगा ना like है कि नहीं. These are like terms. We can take 1 here, so 3 minus 1, 2√5. Clear? If the subtractions are like this, 3√2 plus 5√7 subtracted by 7√2 minus 7√7. 7√7. तो बेटा this both term will change their sign. ये तो आपको पता है ना कि ब्रैकेट के बाहर ही माइनस है, तो दोनों ही माइनस हो रहे हैं. तो जब किसी भी नंबर को माइनस करते हैं, किसी टर्म को क्या करते हैं, तो उसकी साइन चेंज जरूर होती है. तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो एक नया एक्सप्रेशन बना सकते हैं. इसमें भी कोई साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसको माइनस नहीं करना है, इसके इधर माइनस नहीं है ना. तो 3√2 प्लस 5√7 माइनस 7√2 plus 7√7. Now these are like terms, and this one and this one are also like. ठीक है. तो बेटा तुम बताओ 3√2 और माइनस 7√2 मिला के कितना हो जाता है? हाँ तुम बताओ. इन दोनों में ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं नहीं है, ये दोनों लाइक हैं. तो ये दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 10√2. तुम बताओ बेटा. माइनस 4√2. और तुम भी बता दो. तो माइनस 4√2 इज करेक्ट आंसर. बैठ जाओ. हाँ, प्लस माइनस माइनस. तो माइनस 4√2 प्लस 5√7 प्लस 7√7 will be equals to 12√7. अब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे ना बेटा, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे ना? नहीं होंगे. क्यों? अनलाइक टर्म्स है, तो ये यही रह जाएगा. ठीक है. Similarly, if we are going to apply multiplicational operation between any two irrational numbers, अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस माइनस था, तो रूल वही रहेगा, वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करना है आपको. हालांकि मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल का कोई रोल है क्या? आपको अलजेब्रा का मल्टीप्लीकेशन आता है ना? तो अगर 3a और 5a को मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आएगा बेटा 3a और 5a। इफ यू मल्टीप्लाई 3a बाई 5a, हाँ तो a का a के साथ क्या आएगा a स्क्वायर, और 3a इंटू 5b क्या होगा बेटा तुम बताओ पीछे। 3a मल्टीप्लाई बाई 5b, the person whom I am asking for will reply only 3a multiply by 5b 15ab। so there is a no like terms rule work here, right? यहाँ तो like terms टाइप का रूल नहीं होता ना कि ये तो ये like देंगे फिर भी मल्टीप्लाई होगा ना, और डिवाइड भी हो सकता है, नहीं होगा। 3a और 5 भी डिवाइड नहीं होंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम समझ रहे हैं तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है। तो 15a और 3 भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा बेटा तुम बताओ। हाँ कंफ्यूज होगा, श्योर हो कि सुन रहे हो बस, श्योर हो। तुम बताओ बेटा होगा, होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई लाइक टर्म का रूल नहीं होता है, ठीक है। ये डिवाइड होगा तो 15 3 को डिवाइड करेगा तो 5 हो जाएगा, और ये डिवाइड वाला ऐसे ही रह जाएगा, b हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5a अपॉन b, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 5a b पावर -1, अगर रूल पता हो शायद तो, नहीं तो इतना ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बेसिक चीज समझ में आया है। अब एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, that is √7 multiply by 2√5 minus 3√7। So everyone do this in your notebook. रूट वाला नंबर वेरिएबल की तरह है, सभी लोग थोड़ा कवर करके करेंगे। बेटा ये तो सही है तुम्हारा, लेकिन स्टेप्स में पढ़ेंगे नहीं, स्टेप्स भी सही है, बस ये बाहर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ तो यहाँ तक लिखो। सही है, बस ये बाहर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हो गया बेटा।
फिर आगे नहीं करोगे? दो टर्म्स है तो दोनों में होगा ना वो तो मल्टीप्लाई। अभी तो तुम सिर्फ एक से किए हो, दूसरे से भी तो होगा। ये हुआ क्या? हो गया? बेटा थ्री जो है ना एकदम क्लियरली ऐसे लिखा करो, ठीक है? नहीं तो ये यहाँ पे समझ जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट मतलब हो जाता है उसका। ये बाहर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 इंटू 3 होकर के 21 हो जाएगा, यही आंसर। तो ठीक है, टेक अ लुक हियर। सिमिलरली जैसे अब अलजेब्रा का करते हैं, करेंगे, है ना? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 5, रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 5, ओके? तो कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, जैसे वेरी करते हो अलजेब्रा में, एकदम सेम रूल। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 रूट 35, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 आएगा, एंड रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 मेक्स 7। क्या देखो, एक्चुअली रूट 7, एक थोड़ा सा ये देखो, रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 7, all of you written it like root 49, it is correct, and root 49 is equals to 7। तो एक क्यों ना हम शॉर्टकट ऐसे समझे कि अब इफ देयर आर टू numbers in a root and the numbers are same, the number will come out of the root, if you are multiplying them, okay? I mean to say कि root 5 multiply root 5, it will 5, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 3 हो जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 2 हो जाएगा ना? तो 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 इंटू रूट 7 मीन्स 7, वी कैन राइट इट लाइक 7 ना? इट विल बी 2 रूट 35 माइनस 21, ये करेक्ट आंसर आ गया, ठीक? अच्छा, अगर यहां भी नंबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अब यहां भी नंबर है, सिमिलर प्रोसेस चलेगा, 3 का 2 से होगा, 5 इससे, इस टर्म का इन दोनों, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तुम समझ रहे हो बेटा? होगा? चलो, चलो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स में कि मैं देख ले रहा हूँ, क्वेश्चंस में कि आएंगे तो देखेंगे क्या है। लिखा है ऐड add 3 root 5 plus 2 root 7 and root 5 minus
5√7। क्लियर है? इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो आपको पता है ना, इस एक्सप्रेशन के बाद प्लस के साइन लगा देंगे, फिर ये रख देंगे, फिर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3√5 प्लस 2√7 प्लस वाई प्लस, बिकॉज वी हैव टू ऐड दिस ना। अगर यही बोला होता सब्ट्रैक्ट तो क्या होता? सब्ट्रैक्ट कभी ऐसे लिखता नहीं है बेटा। सब्ट्रैक्ट लिखता है तो एंड नहीं लिखता, फ्रॉम या बाई कुछ ऐसे करके लिखता। फ्रॉम जनरली लिखेगा, या तो पहले खुद ही साइन पुट करता है ना। तो अब ब्रैकेट खोलने पे कोई साइन तो चेंज होने वाली है नहीं, यहाँ पे कि होने वाली है? इसमें कोई साइन चेंज होगी, इसमें कोई साइन चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि बाहर माइनस कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो 3√5 एंड √5, 4√5 समझ में आया तो बोलना। 2√7 माइनस 5√7 माइनस 3√7। अब ये दोनों तो आपस में होगा नहीं कुछ इसका, तो यही होगा आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, देन वी विल मूव टू द दिस टॉपिक। ओके, -2√3 माइनस -4√5। ओहो, इसको आप लोग करिए बेटा। ये अगर दोनों ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई है ये। पूरा अलजेब्रा वाला दिमाग अपना लगाइएगा। डन। एक मिनट और है। कैसे कैसे किए बेटा? इसको इससे किए हो तो ये तो आ गया। चलो अब फिर क्या किए? तो ये माइनस प्लस तो माइनस ही होता है ना। और अच्छा ठीक है, इसको इससे इसको इससे ये सेम है। तो ऐड जाएंगे तो 4 15 16 ये वो इशू नंबर है, मतलब इंडियन था।
Okay. Now I'm going to solve it, and all of you will match your answer whether it is correct or not. ठीक है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. देखो, you will multiply this term by both of this term and this term as well from both of this term. Okay, ये पता है ना इतना. तो पहले इसका इससे कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 से 6 हो गया, और रूट थ्री 3 हो गया. फिर इसी का इससे कर रहे हैं. बेटा अब इधर देखो, अब तुम्हारा टाइम ओवर. अब इसका हम इससे कर रहे हैं फिर से, तो -2 और +4 -8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और √3 और √5 √15 हो जाएगा ये. अब तो इसका तो इन दोनों से हो गया ना, अब इसकी बारी है. तो -4 और -3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, +12, और √5 और √3 क्या हो जाएंगे, √15, और -4 + 4 -16, और √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. 18. ये और ये सॉल्व होंगे ना, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, √15. तो -8 + 12 क्या हो जाएगा, +4 √15, और -80. अब ये 18 है और ये -80 है, तो -62 आ जाएगा. तो 4 √15 -62. किसका किसका सही है? पीछे तो सही था, वो मैं चेक कर चुका था. और किसी का सही है? तुम्हारा सही है. तुम्हारा भी सही है. हाँ ठीक है. So beta, now we will learn next topic, that is representing irrational number on the number line by another way. Actually we have already done this with one way, spiral, right? We will learn another way to represent irrational number on the